Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Today we will continue chapter 11, chemical effects of electric current, and the next topic is chemical effect of electric current. मैं रीड करूं? ओके मैं मैम। करूं रुक निदा जाइए। परवीन? एक्टिविटी 3 हमारा बाकी था, एक्टिविटी 3 रीड करेंगे। मैं करूं? निदा परवीन। हाँ करो। रीड कीजिए जल्दी। मैं कर दूं रीड? हाँ करो। Material, three clean plastic or rubber, caps of bottle or breaker, distilled water, vinegar or lemon juice, caustic soda water, soda sugar, two tester, connecting wire for the electric current circuit path. Take 3 clean plastic or rubber caps of bottle, pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydraulic acid. 2 distilled water in one cap. Now in the second cap, connecting distilled water. Add a few drops of a bases such as caustic soda or potassium hydrodic. Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. Now arrange electric circuit part for the above 3 caps and test which solution conduct electricity and which do not. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salt. मैम हो गया? ओके। एक्टिविटी 3 के लिए हम क्या क्या लेते हैं? 3 क्लीन प्लास्टिक या फिर और रबर कैप्स ऑफ बॉटल। रबर कैप वाला 3 प्लास्टिक बॉटल लेंगे या फिर बीकर ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर लेंगे, विनेगर या लेमन जूस लेंगे, कास्टिक सोडा, शुगर, 2 टेस्टर, कनेक्टिंग वायर्स। और ये सब किसके लिए लेते हैं? हम इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बनाने के लिए लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 क्लीन प्लास्टिक जो जिसमें रबर कैप हो वैसा बॉटल लेंगे और for about 2 teaspoon full of distilled water in each of them. हर एक में हम क्या कर देंगे, 3 बॉटल जो हमने लिया है तीनों में हम 2 टेबल स्पून डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे और पहला वाला जो बॉटल रहेगा उसमें हम कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस डाल देंगे और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। ठीक है? यस मैम। और जो सेकंड वाला बॉटल रहेगा उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस, कोई भी बेस लेंगे जैसे कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड बॉटल रहेगा जिसमें हमने डिस्टिल वाटर लिया है, तीनों में डिस्टिल वाटर था, तो थर्ड वाला जो डिस्टिल वाटर वाला बॉटल रहेगा उसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे और तीनों को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बनाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ कैसे बनाया जाता है, तो उस सॉल्यूशन से फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ आपको बनाना है। यस मैम। और आपको देखना है कि कौन से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कैसे हम चेक करेंगे? टेस्टर के थ्रू हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मतलब बहुत सारे जो लिक्विड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड, बेस या सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके मैम। दृष्टि रीड करो। यस मैम। Chemical effects of electric current. Electric current produces some kind of effect when it flows through a conducting solution. What is the effect called?
Let's understand this. Two metal rods are dipped in a conducting solution kept in a beaker. One end of metal rod is connected to the positive terminal of the battery and other rod is connected to the negative terminal. Electric current begins to flow. In this condition, the conducting solution dissociates into ions. This effect is called chemical effect of electric current. The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposition of metal may be seen at electrodes also. Changes of color of solution may occur. All this may be seen one at a time or simultaneously. The apparatus mentioned above is called voltmeter. The terminal of the voltmeter, which is connected to the positive terminal of the battery, is called anode, and the terminal which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. In the external circuit of the voltmeter, current flows from anode to cathode, but inside the conducting solution, current flows from cathode to anode. This process is called electrolysis. If current Okay, is stop. passed, yes, Stop. ma'am. Chemical effects of electric current. Electric current produces some kind of effect when it flows through a conducting solution. जब conducting solution में current flow होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है तो कुछ इफेक्ट भी होते हैं, कुछ इफेक्ट भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड इन अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी 3 में हमने सॉल्यूशन तैयार किया था, उसी तरह से कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में हम मेटल रॉड को डीप कर देंगे, ठीक है। किसी भी बीकर में कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेकर मेटल रॉड को उसमें हम डुबा देंगे और वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सर्किट कैसे बनाते हैं, मेटल रॉड का जो एक एंड होगा उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा रॉड होगा उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इन दिस कंडीशन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डिसोसिएटेड इनटू आयंस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है वो आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन लिया, नमक का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, तो वो आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस इफेक्ट को ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes, जिसके रिजल्ट के रूप में जो बबल्स होते हैं, गैस के जो बबल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे बनने लगते हैं। डिपोजिशन ऑफ मेटल में बी सीन एट इलेक्ट्रोड। इस तरह से मेटल का जो डिपोजिशन होता है, मेटल रॉड हमने लिया ना, मेटल का जो डिपोजिशन होता है वो हमें इलेक्ट्रोड्स पर दिखाई देने लगता है। ऑल्सो चेंज ऑफ कलर्स ऑफ सोल्यूशन में ऑकर। इसके अलावा जो सोल्यूशन हम लेते हैं उसके कलर में भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और ये सब जो होता है वो एक ही टाइम पर एक साथ होता है, कलर में चेंज होना, मेटल का डिपोजिशन होना, ये सब एक ही टाइम पर एक साथ होता है, ठीक है। और जो एपरेटस हम लेते हैं, अभी तक हमने जो बात की, एपरेटस मेंशन्ड अबव इज कॉल्ड वोल्टामीटर। इसको क्या कहा जाता है, जो एपरेटस हम तैयार करते हैं, जो लेते हैं, उसे वोल्टामीटर कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. The terminal of the voltmeter which is connected to the positive terminal of the battery is called anode. मतलब वोल्टमीटर का जो टर्मिनल होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसे एनोड कहा जाता है। और जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे क्या कहा जाता है, Voltmeter. कैथोड कहा जाता है, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल जब बैटरी जब
वोल्टामीटर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो उसे एनोड कहेंगे, और जब वोल्टामीटर का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तब हम उसे कैथोड कहेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. In the external circuit of the voltmeter, current flow from anode to cathode. अगर हम वोल्टामीटर के एक्सटर्नल सर्किट को देखें, बाहरी वाला सर्किट को देखें, तो उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। बट इनसाइड द कंडक्टिंग सॉल्यूशन करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, लेकिन कंडक्टिंग सॉल्यूशन में करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस सभी को समझ आया? Yes, ma'am. ओके, आगे हम देखते हैं। नीला परवीन रीड करो। If current is passed through a conductor of acidic water and few drops of एसिडिक वाटर, acidic water and few drops of sulfur added सल्फ्यूरिक एसिड, electricity of water takes place and it डिसोसिएट, so into आयंस, ions. Figure 11.3 bubbles race in below the two adducts similarly on Electrodes. electrode similarly on passing electric outside water and the chain that in the solution in call it chemical. Okay, stop. If current is passed through a container of acidic water, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड इट डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर जो करंट होता है कंटेनर में कोई एसिडिक वाटर कैसे बनाएंगे, वाटर में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एसिड है ना, ठीक है, एसिडिक होता है। तो वाटर में हम उस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक। तो एसिडिक वाटर में से जब करंट पास होता है तो वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, और जो आयंस होते हैं उनका डिसोसिएशन होता है, आयंस ब्रेक होते हैं, ठीक है। और बबल्स वर सीन बिलो द टू इलेक्ट्रोड्स, बबल्स कहाँ दिखाई देते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं उसके नीचे में बबल्स हमें दिखाई देते हैं, दिख रहा है फिगर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्ट वाटर, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्ट वाटर में से पास होता है तो वहां पर भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है और सोडियम और क्लोराइड आयंस का डिसोसिएशन होता है। अभी मैंने बताया था कि सॉल्ट वाटर जिसका फॉर्मूला होता है सॉल्ट का NaCl, ठीक है, तो उसमें आयंस किसमें किसमें ब्रेक होगा, Na+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। Thus the changes that take place in the conducting solution is called its chemical effect. इस तरह से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में चेंज होना क्या कहलाता है, केमिकल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. देखो यहाँ पर ड्रॉ के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर बैटरी लिया गया है, सेल या बैटरी लेते हैं जिसका एक एंड किससे कनेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रोड से और दूसरा दूसरे इलेक्ट्रोड से, ठीक है। पॉजिटिव Yes, ma'am. टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसको एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसे कैथोड कहते हैं, ठीक है। और ये है एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। Yes, ma'am.
Yes. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि किसी भी सॉल्यूशन में, लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है, लेकिन क्या फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं? चलिए इसको भी हम देखते हैं। आकृति रीड करो। Yes, ma'am. Material required: potato, sugar, connecting wires for the electric circuit part. Cut potato into 2 equal parts and make an electric circuit part according to the figure 11.4. By stretching the copper wires of a tester into it, after few minutes you will notice greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there is no such spots around the other wires. Repeat the activity for 2-3 times. You will find that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. This shows that electric current passes through the potato and produce chemical effects. मैम हो गया? हाँ, एक्टिविटी 4 में हम लेंगे पोटैटो, शुगर, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बनाने के लिए, ठीक है। कट पोटैटो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। पोटैटो को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है और इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ आपको बनाना है जैसे कि फिगर में दिखाया गया, ठीक है। बैटरी का एक एंड पोटैटो से कनेक्ट करना है और कंपास नीडल हमें लेना है, ठीक है, उसका एक एंड हमें पोटैटो से कनेक्ट करना है, ठीक। बाय इंसर्टिंग द कॉपर वायर्स ऑफ ए टेस्टर इनटू इट, इसमें हमें क्या कर देना है? कॉपर का वायर हमने लिया है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए हम कॉपर का वायर लेते हैं जिसको पोटैटो के अंदर इंसर्ट कर देना है। आफ्टर फ्यू टाइम्स यू विल नोटिस greenish blue spot on the potato around on one wire, whereas there is no such spot around the other wire. कुछ देर में आपको क्या दिखाई देगा? पोटैटो के चारों तरफ में आपको ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखाई देंगे, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई देगा और एक जो वायर के चारों तरफ दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन दूसरे वायर के चारों तरफ ऐसा दिखाई नहीं देगा। और इस एक्टिविटी को आपको 2 to 3 टाइम रिपीट करना है। यू विल फाइंड दैट इट was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. आप क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे हमने आलू से, पोटैटो से कनेक्ट किया, सिर्फ उसके चारों तरफ ही हमें ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखाई देंगे। ठीक, तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द पोटैटो एंड प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट। इससे क्या प्रूव होता है? इससे शो होता है कि पोटैटो के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है और उसमें भी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। Yes, ma'am. Okay. Ma'am,